Okay, guys, welcome to the another lecture of colloids. In the last lecture, we discussed about different types of colloids and also different types of sols, lyophilic, lyophobic sols, and sols depending upon the size of the particles, like aggregation of the particle, multimolecular colloids, macromolecular colloid, associated colloids. Now, in this lecture, we are going to discuss about how sols are prepared, that is solid in liquid, or basically you can say how colloids are prepared. Second, what are the basic properties of colloids. Third, coagulation method. Coagulation, if you remember, it is nothing but the colloids which get precipitated out. और वो कैसा precipitate होता है? If you remember last time I said कि colloid particle does not settle down in the bottom, they are continuously moving inside the dispersion medium. Why? Because they have a particular same charge. So every colloid has a same charge. So it can be a negative colloid, it can be a positive colloids. Now in colloids, these colloidal particles, they do not settle down. Why? Because when they come close, they will get repelled because of the same charge on them. So if you remove the charge, they get neutral, and because of neutrality point is reached, all colloid particle will aggregate. Aggregate होने के बाद they will settle down in the bottom as a precipitate. So that is called as coagulation method. So coagulation is basically precipitation of colloids. आपने एक सपोज सॉल बनाया, सॉलिड इन लिक्विड ऐड किया, वो सॉलिड पार्टिकल्स अंदर जो होंगे कोलोइडल साइज के हो जाएंगे, तो वो बन जाएगा एक कोलोइड. सपोज उन सारे कोलोइड पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है, so now it is a negative colloid. Now suppose what you do by electrophoresis method or by the addition of electrolyte, you remove this charge. आपने सारे colloids के negative charge निकाल दिए हैं, तो क्या होगा, सारे कोलॉइड्स एग्रीगेट होके लंप बन के बॉटम पे बैठ जाएंगे और वो बन जाएगा प्रेसिपिटेट. तो आपने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, we have removed the charge of colloids and allow them to aggregate together and form a precipitate and lose their colloidal nature. That is called as coagulation method. So we're going to discuss about preparation of colloids, property of colloids, and coagulation. Okay. So let's start with that. The first part is nothing but the preparation of colloids. अब प्रिपेरेशन ऑफ कोलॉइड्स में हम लोग सॉल के बारे में बात करेंगे. सॉल क्या होता है? सॉल इज नथिंग बट सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इज द डिस्पर्स फेज एंड लिक्विड इज द डिस्पर्शन मीडियम. अब दो टाइप के सॉल्स होते हैं, इफ यू रिमेंबर, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. लायोफिलिक मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में बहुत ज्यादा interaction है, very strong interaction between dispersed phase and dispersion medium, that is called as lyophilic. Okay, philic, lyophilic, philic means loving. So dispersed phase and dispersion medium, that is lyophilic colloids. Lyophilic colloids को बनाना बहुत easy है. To make a lyophilic colloids, you just need to add the dispersed phase into dispersion medium, and when you add them, they get converted directly into a colloidal state, like starch, gum, gelatin. When they are being added to water, they form a lyophilic sol, a lyophilic colloid. And even if the water is removed, you can reverse it by again adding the water and again meeting the entire colloids. So it is a kind of a reversible colloids. ये हम लोग ने last lecture में किया था. तो lyo, मेरा बोलने का मतलब ये है, what I want to explain is that you can easily make a lyophilic sol, but it is difficult to make a lyophobic sol because उसमें disperse phase और dispersion medium में ज़्यादा interaction नहीं होता है. So now let's see some examples. Let's see how we will prepare this lyophobic sols. Okay, चलो वो हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर दें. थोड़ी देर के लिए कैमरा स्क्रीन में हटा रहा हूँ, so you can write something. So we talk about preparations of colloids. Okay, now the first type of colloids are basically lyophilic colloids. Okay, very easy to prepare just by mixing disperse phase in dispersion medium. Okay, you just mix them. Example, gelatin, or can take gum, starch, egg albumin, which is water soluble,
protein, albumin, etc. You can add them in, you can mix them in water. So water becomes your dispersion medium, and these are nothing but disperse. ये सारे क्या हो गए? These are nothing but disperse phase. Okay, so disperse phase, dispersion medium, easy interaction, reversible type of colloids, so easily can be prepared. Now let's talk about the preparation of lyophobic colloids. Now lyophobic colloids can be prepared by कंडेंसेशन मेथड. कंडेंसेशन मेथड में कौन से मेथड आते हैं? केमिकल मेथड, सेकेंड इज एक्सेसिव कूलिंग, एक्सेसिव कूलिंग कर सकते हैं हम लोग, सॉल्वेंट एक्सचेंज, सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड फोर्थ इज बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, गैस से लिक्विड एंड ऑल, चेंज ऑफ physical state, gas to liquid, liquid to solid, like that. So this is in the condensation method, and basically condensation क्या होता है? Simple condensation ये है, whenever you see a conversion into like for example a conversion of water vapor, conversion of water in the gaseous state, तो gaseous state से अगर वो liquid state में convert होगा, that is condensation, where there is a development of intermolecular forces of attraction between the molecules. सो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के वजह से जो पार्टिकल्स होंगे वो एसोसिएट हो जाएंगे एंड दे रीच टू अ साइज ऑफ अ कोलॉइड्स, दैट इज व्हाई दे कम अंडर कोलॉइडल कैटेगरी आफ्टर मेकिंग देम. सो दिस इज वन ऑफ द वे द लायोफोबिक कोलॉइड, ये एक मेथड हो सकता है. ओके, लायोफोबिक कोलॉइड के लिए दैट इज अ कंडेंसेशन मेथड. द सेकंड मेथड इज dispersion method. Dispersion method has a mechanical dispersion, and second is a electrical dispersion. Okay, where you use a lot of mechanical energy, you use electrical energy to make a colloids. Electrical method में जो specific method discuss करेंगे, that is Bradig's arc method, where a high potential, high electric arc is being produced between two electrodes. This is the method for preparation of lyophobic colloid. Then the next method, last method you can prepare a lyophobic colloid is by a peptization method. ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, so these are the basic methods for the preparation of lyophobic colloids. So lyophobic colloids different methods से prepare हो सकता है. As you have seen, it can be prepared with a different method. Condensation method which has a chemical reaction involved. Chemical reaction, यहाँ पर हम लोग दो substance को react करेंगे जिसमें से कोई एक दूसरा substance बनेगा. अच्छा, chemical reaction oxidation से हो सकता है, reduction से हो सकता है, hydrolysis से हो सकता है, double decomposition हो सकता है, कोई भी टाइप का रिएक्शन हो सकता है, वेयर यू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट व्हिच रीचेस टू अ कोलॉइडल साइज, द पार्टिकल रीचेस टू अ कोलॉइडल साइज एंड दे फॉर्म अ कोलॉइड. Then you can do excessive cooling, then solvent exchange from organic to inorganic, like from organic solvent, like you take chloroform and add into a water, physical state, vapors are converted into liquid and then solid. This is condensation method. The second method is dispersion method. With dispersion method में क्या होगा कि जो solid particles होते हैं, they get dispersed either by mechanical energy or the electrical energy, and then they associate to reach to a colloidal size and they form colloids. And last is the peptization method. In peptization method we need to add an electrolyte to a system. We'll see that. So हम लोग start करते हैं सबसे पहले condensation method से. Condensation method में the first method is electrical chemical method. So let's talk about chemical method now. Okay, so I'll rub this out. Okay. Okay.
So let's talk about condensation method. And condensation method, the first method is chemical method. Chemical method मतलब involving what? Chemical reactions. Okay. अब chemical reactions तो different type के हो सकते हैं. So for example मुझे silver sol बनाना है, silver का सल्फर सॉल बनाना है, सल्फर का सिंबल इज एस. तो हम लोग एक मेथड यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेयर यू टेक हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स विद SO2 and it forms water. This H2 goes with O to form water, and this sulfur, see here the sulfur is in -2 state, and you get a 3 moles of colloidal sulfur. ये जो सल्फर बनेगा ये फ्री स्टेट में 0 है, तो -2 से 0 हुआ मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, that is oxidation, and SO2 is acting as an oxidizing agent here. So here in this case we get S in 0 state. Now this sulfur in the pure form which is formed reached to a colloidal size, and that is why we get a sulfur sol. So you can prepare a sulfur sol by oxidation method. Similarly, or you can apply a different method like reduction method. In reduction method, what do you do? Example, I want to prepare a gold salt. So gold salt ke liye we take suppose AuCl3. This is called as auric chloride, where Au is in a charge of +3. To this you add 3 moles of SnCl2. Stannous chloride या tin 2 chloride. यहाँ पर tin का charge +2 है. When you mix them, it forms SnCl4. मतलब ये पूरा क्लोरीन Sn के पास चले जाएगा to form SnCl4, and the gold is set free. देखो 0 स्टेट में आ गया, +3 से 0 मतलब रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. Now this gold is formed in a pure atomic state, and these atoms will aggregate together to form one colloidal, to form a large particles whose size is between 10 raised to -3 to 10 raised to 3 nanometer, which is a colloidal range. That is why this comes under the category of multimolecular colloids. जब हम कुछ सॉल्व बनाते हैं, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम वो डिस्कस किया था, तो ये बन गया हमारा गोल्ड सॉल्ट. तो गोल्ड सॉल्ट देखो ये बना है बाय अ रिडक्शन केमिकल रिएक्शन. ओके, दिस SnCl2 act as a reducing agent here. This is your oxidizing agent here, this is a reducing agent here, so it is reducing this AuCl3. Similarly, we can also take an example of hydrolysis. हाइड्रोलिसिस मेथड भी देख सकते हैं हम लोग. हाइड्रोलिसिस मतलब एडिंग वाटर. फॉर एग्जांपल यू टेक FeCl3, फेरिक क्लोराइड, अ सॉल्ट, फेरिक क्लोराइड. Fe has a charge of +3. You add water to it. When you add water, Fe and Cl will get separate out, they get dissociate. Fe combines with OH, we can say, to form FeOH thrice, that is called as ferric hydroxide. इसमें Fe का charge +3 है, मतलब the oxidation state doesn't change, and get 3 moles of HCl. So this is a precipitate obtained in the reaction. Now these precipitate do not settle down. They have a size, they aggregate together, they have a size in colloidal range. So now this becomes what? Ferric hydroxide sol. ये वो sol बन गया. Hydrolysis method से. Hydrolysis means breaking of anything with the help of water. Lysins means breaking and hydro means water. So we are breaking FeCl3 with water. अच्छा, उसके बाद डबल डिकम्पोजिशन भी ले सकते हो रिएक्शन. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वे यू टेक सपोज आर्सेनिक ऑक्साइड लिया है. ओके, नाउ आर्सेनिक ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, 3 moles of H2S. okay, 3 moles of H2S. So it result with the formation, देखो ऑक्सीजन वाटर के H के साथ चले जाएगा टू फॉर्म वाटर, सल्फर इसकी जगह पे आ जाएगा, एंड इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स AS2S3, arsenic sulfide, negative type of salt with water. So now this is the precipitate which reaches the colloidal size, so it becomes the arsenic sulfide salt. So chemical method में we can use oxidation method, reduction, hydrolysis, double decomposition, any of the method to prepare a particular salt. Silver salt, gold salt, sulfur salt.
hydroxide salt, arsenic sulfide salt, you can prepare it. Now, after chemical method, in condensation, we have a next method, and the next method is excessive cooling. Excessive cooling. For example, a solution of water in organic solvent like ether or chloroform. Now you take a, suppose we take a ether, ROR. This is ether, ROR. Ether ले लिया मैंने, okay? और you can also take chloroform, CHCl3. दोनों में से कोई एक लेना है. उसके अंदर हम लोग ने ऐड कर दिया है H2O, water. And then you cool it. So what will happen? This water will get freeze. These water particles in chloroform and water and chloroform and ether, they do not mix with each other. ये दोनों आपस में mix नहीं होने वाले. Okay? मतलब आपने ये क्लोरोफॉर्म ऐड किया है वाटर में, या वाटर ऐड किया क्लोरोफॉर्म में, या वाटर ऐड किया ईथर में, दोनों मिक्स नहीं होंगे. बट व्हाट विल हैपन व्हेन यू फ्रीज इट, व्हेन यू कूल इट, तो वाटर पहले फ्रीज हो जाएगा और वाटर के अंदर आइस के पार्टिकल्स रहेंगे. वो आइस के पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप्ड हो जाएंगे पूरे सॉल्वेंट में. या तो ईथर आप यूज कर रहे हो या क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो, तो वो अब एक कोलॉइडल स्टेट में पहुंच गए. सो दैट इज आल्सो excessive cooling. And now this, because of excessive cooling, we can write down that now you're in this case, this is your organic solvent. Suppose ये आपका क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है, और ये वाटर के पार्टिकल्स है. अब ये जो वाटर के पार्टिकल्स है, एक्सेसिव कूलिंग की वजह से 0 डिग्री के नीचे आप चले गए, इसको फ्रीज कर दिए, तो क्या हो गया? एक्सेसिव कूलिंग है, देखो ये वाटर पार्टिकल ये आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए. सो दीज आइस पार्टिकल्स आर इनसाइड दीज डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन मीडियम, सो ये आपके आइस पार्टिकल हो गए. This is basically an ice particle. So this is also a colloid, where basically in this colloid we can say the colloidal solution of ice in solvent. Colloidal solution of ice in solvent. तो ice आपका disperse phase हो गया और solvent आपका dispersion medium हो गया. Okay? वो कौन सा solvent लिया आपने? Organic solvent लिया है, तो obvious बात है उसमें वो पूरा dissolve तो नहीं होगा, लेकिन आप फ्रीज करते जाओगे तो वाटर फ्रीज होके आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलोइडल साइज में आ जाएगा, तो वो एक डिस्पर्स फेस की तरह हो जाएगा. एंड मीडियम विल बी द डिस्पर्शन मीडियम, दैट इज क्लोरोफॉर्म और ईथर, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो वो तो लिक्विड स्टेट में ही रहेंगे. ओके, तो ये एक मेथड हो सकता है एक्सेसिव कूलिंग. देन उसके बाद में थर्ड वी कैन टेक इट एज solvent exchange method. Okay, the third method is basically solvent exchange method. Now in solvent exchange क्या कर सकते हैं हम लोग? For example, you take a alcoholic solution of sulfur or phosphorus and pour into water. मतलब एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में आप चले गए, मतलब आपने यहाँ पर अल्कोहल लिया है, सपोज दिस इज योर अल्कोहल, सपोज दिस इज योर इथेनॉल. ओके, अल्कोहल है, दैट इज ROH. ठीक है, अब इसमें आपने सल्फर ऐड कर दिया है. ठीक है, सल्फर ऐड कर दिया. अब इसको आप पूरे इस मिक्सचर को, यू आर एडिंग दिस मिक्सचर, यू आर पोरिंग दिस मिक्सचर inside water. When you add this inside water, it result into the formation of a colloidal dispersion. अब ये colloidal dispersion अब बन जाएगा किसका? सल्फर का. किसके अंदर? वाटर के अंदर. So now this will be a colloidal dispersion of sulfur inside of water. Inside water, colloidal dispersion. So that is basically a sulfur colloid. ये सल्फर कोलॉइड बन गया. सिमिलरली सल्फर नहीं लेना तो फॉस्फोरस ले सकते हो. यू कैन ऐड सल्फर और यू कैन ऐड P4 फॉस्फोरस. ओके, सो अब ये सॉल्वेंट एक्सचेंज हुआ. पहले वो कौन से सॉल्वेंट में थे? पहले वो थे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. अब वो कौन से सॉल्वेंट में आपने उसको ऐड किया है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड किया है, वाटर के अंदर. सो व्हेन यू कन्वर्ट वन सॉल्वेंट टू द अनदर सॉल्वेंट, there is a formation there is a chance of formation of colloidal mixture. ये एक मेथड हो सकता है.
And fourth method is basically by change of physical state. Now, what is this change of physical state? Like vapors of mercury and sulfur are passed through cold water containing suitable stabilizer. मतलब आपने क्या किया है, cold water लिया है, you have taken a cold water inside. This is cold water. In this container, you are passing vapors of mercury Hg और सल्फर एसिड. आपने इसके वेपर्स पास किए, सल्फर के या मर्क्यूरी के वेपर्स पास किए इसके अंदर से इन अ वेरी कोल्ड वाटर. प्लस यू आर ऑल्सो एडिंग अ स्टेबलाइजर. क्या स्टेबलाइजर? सच एज अमोनियम सॉल्ट और सिट्रेट सॉल्ट. NH4 प्लस अमोनियम सॉल्ट डाल सकते हो और सिट्रेट सॉल्ट डाल सकते हो जो स्टेबलाइज करके रखेगा. तो ये आपका कोल्ड वाटर हो गया डिस्पर्शन मीडियम. ये आपके डिस्पर्स फेज है, मर्क्यूरी या एसिड जो डिस्पर्स फेज है, और डिस्पर्स फेज को स्टेबलाइज करके डिस्पर्शन मीडियम में ये स्टेबलाइजर रखेगा. So the role of stabilizer is to keep dispersed phase inside a dispersion medium in a stable manner. This is how also you can change a physical state. आपने यहाँ पर मर्क्यूरी और एसिड का फिजिकल स्टेट चेंज करना है और वाटर के अंदर वो उसका एक कोलॉइड बन जाएगा. मतलब वेपर स्टेट से डायरेक्टली वो सॉलिड पार्टिकल स्टेट्स में चले जाएंगे. ओके, दे कन्वर्ट्स इनटू अ सॉलिड पार्टिकल. सो देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मर्क्यूरी और एसिड वेपर्स इनटू सॉलिड पार्टिकल्स. एंड अपने कोल्ड वाटर किया है तो वो कंडेंस हो जाए और वो एग्रीगेट होके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इनसाइड. सो नाउ these are nothing but solid particles of mercury or sulfur. तो ये बन गया sol. Okay, so this is a sol which is formed due to the change of physical state of the dispersed phase from vapor state to a solid state. Okay, so this is total condensation method. Now, the next method for the discussion is dispersion method. In dispersion method, basically there are two types. First is the mechanical dispersion, and second is electrical dispersion. Okay, so in case of dispersion method, there are two types of method, that is mechanical and electrical. Now, what is dispersion? Basically, dispersion is the dispersion of the particles in from a suspension state, you can say, into colloidal state. Now, suspension basically क्या होता है, where the particle size are very much greater than 1000 nanometers. Okay, तो आपको suspensions वाले mixture को colloidal में convert करना है. So you have to convert these large particles into a very fine particles whose range is between 10⁻³ to 10⁻³ nanometers. हमको वहां तक लेके आना है. Okay, so now पहला मेथड है डिस्पर्शन मेथड में मैकेनिकल मेथड. मैकेनिकल मेथड में वी रिक्वायर अ कोलॉइडल मिल. कोलॉइडल मिल क्या करता है, सस्पेंशन को, जैसा गोल्ड का सस्पेंशन, सिल्वर का सस्पेंशन होता है, मतलब गोल्ड सॉल, अगर सिल्वर सॉल हमको बनाना है, गोल्ड सॉल बनाना है, प्लैटिनियम, कॉपर, इसको अगर वाटर में इसका सॉल बनाना है तो क्या करना चाहिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेथड में से मैकेनिकल मेथड कैसा वर्क करेगा, इट रिक्वायर्स अ कोलॉइडल मिल जिसमें वी हैव सम प्लेट्स. वो प्लेट्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉल्व होती है, रोटेट होती है एट अ वेरी हाई आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट. The suspension is released and suspension is grind into a small colloidal particles. That is a mechanical method. Second is the electrical method where you need to generate a high intensity electric arc between the electrodes. वो electrode पे arc generate होती है जिसके वजह से हमारा जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसा गोल्ड के आपने पीसेस लिए हैं, कॉपर के लिए हैं, सिल्वर के लिए है, वो वेपराइज होते हैं. एंड इन दैट पार्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क,
हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक आर्क इज जनरेटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और आपने अपना सब्सटेंस रखा है, तो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होने की वजह से जो हाई इंटेंसिटी की है सब्सटेंस, गोल्ड, सिल्वर हो या एनी अदर यू वांट टू प्रिपेयर अ मेटालिक सॉल्ट, बेसिकली प्लैटिनियम लिया, कॉपर लिया, वो वेपराइज हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिक आर्क वाटर में होती है, तो वेपराइज होते हैं, तो वाटर में जैसे वेपर क्रिएट होते हैं, वो पूरे सिस्टम को हम लोग आइस बाथ में रखते हैं। तो आइस बाथ की कूलिंग से जब वेपर्स ऊपर जाते हैं पानी में ट्रेवल होते होते, तो वो कंडेंस होने लग जाते हैं, एंड दे एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म लार्ज कोलॉइड्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स, एंड वो बन जाता है गोल्ड कोलॉइड, सिल्वर कोलॉइड। सो इलेक्ट्रिकल, दिस मेथड इज कॉल्ड एज ब्रेडिक आर्क मेथड। इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। सो इलेक्ट्रिकल मेथड में वी हैव arc method. What we do in this method, we keep the entire mixture. अब ये हम लोगों ने एक आइस बात लिया, we have taken ice bath here, okay, और उसी के अंदर हम लोगों ने एक कंटेनर रखा है, okay, this is the container kept inside the ice bath. Now this now in this container, the inner container will have it will have two electrodes inside. So these are the metal electrodes, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने पूरा वाटर फिल करके रखा है। दिस इज वाटर फिल्ड इनसाइड। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो वाटर में जनरेट होना है। एंड नाउ यू हैव दीज पार्टिकल्स, द गोल्ड पार्टिकल और द सिल्वर पार्टिकल्स। हम लोगों ने गोल्ड पार्टिकल्स लिए, तो ये गोल्ड के पार्टिकल हो गए, large in size, are between these electric arcs। अब इसके बीच में, now here in the outer compartment you have what, you have what, these are the ice bath, मतलब आपने यहाँ पर ice place किया है basically, these are the ice cubes here, so these are nothing but the ice bath। तो ice bath में आपका पूरा कंटेनर है, okay, so this is the ice bath, these are nothing but the मेटल इलेक्ट्रोड्स, ओके, और आपने इस मेटल इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एट अ वेरी हाई पोटेंशियल इज जनरेटेड। तो जिसके वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल पे यहाँ एक आर्क जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक आर्क ऑफ अ हाई पोटेंशियल। सो दिस इज द आर्क जनरेटेड। अब इसकी हीट के वजह से दीज गोल्ड सब्सटेंसेस, जो बड़े पार्टिकल्स में, वो वेपराइज होना चालू हो जाएंगे, वेपराइज, और वेपराइज होके आउटर पार्ट के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कूलिंग, दे गेट कंडेंस एंड दे फाइनली कन्वर्ट इनटू अ कोलॉइड्स। वेपराइज होके वहीं कंडेंस हो जाएंगे वाटर के अंदर, गेट वेपराइज एंड दे गेट कंडेंस। So we can say because of this heat they get vaporized and they get condensed, okay, they will aggregate together to form a multimolecular colloid। So ये multimolecular salt बन जाएगा Bredig arc method के अंदर। This is the one of the method of dispersion, okay। Now the dispersion, the last method to prepare a colloid is peptization method। So let's talk about the peptization method। Now the next method of preparation is the peptization method। In peptization method, what do you do? Peptization में we take freshly prepared precipitate of a ionic compound, freshly prepared precipitate, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, जिसके वजह से वो प्रेसिपिटेट उस आयंस, इलेक्ट्रोलाइट की आयंस को एड्सॉर्ब करेगा और एक आयोनिक कोलॉइड्स बना देगा। दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए पेप्टाइजेशन मेथड में। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्रेश प्रिपेयर्ड
प्रेसिपिटेट में एक ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, कैटायंस एंड अनायंस। उसमें से कोई एक चार्ज वाला आयन जो है वो जाके इस प्रेसिपिटेट पे एड्सॉर्ब हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक, और ये एक कोलॉइड बन जाएगा। कोलॉइड बन जाएगा मतलब जब चार्ज आ जाएंगे कोलॉइड पे, सेम चार्ज आ जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, तो वो नीचे बैठेंगे नहीं बॉटम पे, ठीक है। और आपको फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस, फॉर एग्जाम्पल suppose I take AgNO3 in aqueous media. In this I mix NaCl in aqueous media. I get a precipitate of AgCl in solid form. Plus you have NaNO3 which remains in the ionic state. Okay, so मतलब मैंने जब AgNO3 को AgNaCl में मिक्स किया, ये दोनों को जब मिक्स कर दिया तो इस एक्वस सॉल्यूशन में मुझे कुछ बॉटम पे पार्टिकल्स मिले हैं जो बॉटम पे बैठ गए हैं। ओके, सो दीज पार्टिकल्स, मैं इनको रेड में बता देता हूँ, दीज पार्टिकल्स विच हैव गॉट इन द बॉटम, एक्सप्लेनिंग देम जस्ट, एक्चुअली में जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिलता है AgCl का, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स मिला है, ये सॉलिड पार्टिकल्स सपोज AgCl का प्रेसिपिटेट है, और इसके अंदर वाटर के अंदर Na प्लस आयंस है और NO3 माइनस आयंस है, और Ag प्लस Cl माइनस आयंस दोनों प्रेसिपिटेट बन के बॉटम पे बैठ गए। अभी क्या करना है, इसके अंदर ही ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, व्हाट डू, यू रिमूव दिस। Okay, so here the precipitate here, you take a precipitate here, so this is nothing but the PPT of AgCl का PPT हो गया। Now to this AgCl PPT, suppose we add excess amount of only AgNO3, aqueous amount of only and only AgNO3 आपने इसके अंदर ऐड किया, तो क्या होगा, what will happen when water will goes inside, it will carry what, Ag plus and NO3 minus ions। अब ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स के कुछ ना कुछ एग्रीगेट साइज होगी, उस साइज, अच्छा ये पार्टिकल क्या है, बेसिकली दिस पार्टिकल इज AgCl। AgCl देखेगा कि यहाँ पर Ag प्लस आयंस है और NO3 माइनस आयंस है, तो वो बिकॉज ऑफ प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, ना प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि मैं जिससे बना हूं, मैं वही आयंस को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करने दूंगा, दैट इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। सो अ कोलॉइडल पार्टिकल ट्राई टू एड्सॉर्ब दोज आयंस व्हिच आर सिमिलर टू इट। तो AgCl के ये जो पार्टिकल्स अंदर है, ये अपने ऊपर Ag प्लस जो उससे सिमिलर आयंस है, देखो इसमें Ag है और Ag, तो AgCl Ag प्लस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब होने देगा, और Ag प्लस का साइज प्लस है, तो यहाँ पर देखो इस पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा इस कोलॉइड पे। वैसे एक दूसरा पार्टिकल रहेगा एग्रीगेशन ऑफ AgCl जिसपे प्लस चार्ज डेवलप होगा बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ Ag प्लस। सो बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ये एक दूसरे से रिपेल करना चालू करेंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव कोलॉइड्स। तो ये AgCl प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल फॉर्म में आ गए बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन मेथड, जहां पर आप एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट पे आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, और वो इलेक्ट्रोलाइट में से जो आयंस होते हैं, वो आयन अपने सरफेस पे कोलॉइड्स पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब कर लेता है और कोलॉइडल डिस्पर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो हो गया पॉजिटिव कोलॉइड्स हो गया, बिकॉज यहाँ पर जो भी कोलॉइड्स है वो सब लोगों ने अपने ऊपर कौन से चार्ज एड्सॉर्ब किए हैं, पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब किए हैं, दैट इज called as positive colloids and this is called as peptization method। प्रेसिपिटेट पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पर AgCl के प्रेसिपिटेट पे क्या ऐड किया है, AgNO3 का aqueous solution, जिस because of preferential adsorption AgCl allow Ag plus to get adsorbed on its surface। Okay guys, so this is also one of the method for the preparation of colloids। अब next, okay guys, now next part after the preparation of colloids, हमने colloids तो बना लिया। Now let us talk about purification of colloids। जब आप colloids बनाते हो, you mix electrolytes together। When you mix electrolytes together, there will be different ions along with the colloidal particle present inside that dispersion medium।
तो वो आयंस को हमको निकालना है, दैट आर नथिंग बट द इम्प्योरिटी, मतलब यू आर मेकिंग अ कोलॉइडल डिस्पर्शन। तो ये आपका सपोज डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है, ठीक है, ये AgCl का सपोज कोलॉइड आपने बनाया है, तो ये AgCl के पार्टिकल्स हो गए, तो ये AgCl के पार्टिकल्स सपोज कोलॉइड्स है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझो ये AgCl है इन वाटर, ये कोलॉइड्स है। लेकिन उसके साथ में आप देखोगे तो उसके अंदर थोड़े बहुत आयंस भी प्रेजेंट रहेंगे, लाइक मैंने इलेक्ट्रोलाइट में Na+ यूज किया था, तो ब्लू आयंस जो है वो Na+ के है। थोड़े बहुत आयंस जो है NO3- के है, तो NO3- भी यूज किया था AgNO3 AgCl बनाने के लिए, तो सपोज दीज आर NO3- आयंस, तो NO3- ions are negative in charge, Na+ ions are positively charged. So basically these blue dots and red dots are nothing but the ions inside the mixture. And मतलब क्या हो गया, ये ions है और ये colloidal mixture में क्या कर रहा है, because colloidal mixture में सिर्फ क्या होना चाहिए, water जो आपका dispersion medium है यहाँ पर, और AgCl जो आपका यहाँ पर disperse phase है। फिर ये सारे ions क्या कर रहे हैं, extra ions, because these ions are used up when you mix two electrolytes to make a colloid। तो ये आयंस उनके साथ में आए हैं, लाइक AgCl बनाने के लिए यू रिक्वायर AgNO3, तो NO3- आयंस उसके साथ में आया है सॉल्ट के, एंड NaCl, तो Cl- आयंस NaCl के साथ में आए, तो these are nothing but the unwanted substance inside the colloidal mixture and they are called as impurities। तो इनको निकालना है हमको, तो प्यूरिफाई करना है इस कोलॉइड को, एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स इज कॉल्ड एज द प्रोसेस व्हिच हेल्प्स टू प्यूरिफाई कोलॉइड्स इज कॉल्ड एज डायलिसिस मेथड। आपने सुना होगा ब्लड फिल्टरेशन थ्रू डायलिसिस किडनी पेशेंट के लिए, क्योंकि वहां पर उनके फिल्टरेशन नेफ्रॉन्स में डिस्टेबिलिटी रहती है, सो यू रिक्वायर अ डायलिटिंग मशीन फॉर दैट। सो वो भी एक डायलिसिस प्रोसेस ही होता है जहां पर आप इम्प्योरिटी निकालते हो। बट ये समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड, to remove the impurity, we need to apply dialysis method। dialysis method समझने के लिए you need to understand membrane, like animal bladder, या हमारे ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे जो वॉल होती है उस पे मेम्ब्रेन होती है, ओके। दैट थिन मेम्ब्रेन अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड वाटर थ्रू इट। तो ये मेम्ब्रेन हम लोगों को यूज करना है। मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज अ पोरस सब्सटेंस जिसमें पोर साइज इतनी छोटी है। हम लोग कौन सा मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं, मेम्ब्रेन लाइक एनिमल ब्लैडर हम लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस एज अ मेम्ब्रेन। देन वी कैन यूज अ पार्चमेंट पेपर, वो यूज कर सकते हैं। उसमें फाइन पोर्स होते हैं, वो पोर्स सिर्फ किसको, इसमें पोर्स होते हैं, ओके ये पोर सिर्फ किसको अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास होने के लिए, वाटर एंड आयन। सो इट अलाउज water and ions to pass through it, but not colloids particle। कोलॉइड्स पार्टिकल पास नहीं हो सकते, ये सारे पास हो सकते हैं। तो हम लोग ये मेम्ब्रेन यूज करके, मेम्ब्रेन्स लाइक एनिमल ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर हो गया, ये सब यूज करके हम लोग डायलिसिस प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं। बिकॉज डायलिसिस मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। तो अगर ये इम्प्योरिटी, ये जो आयंस यहाँ पर है रेड और ब्लू डॉट्स में, अगर हम इसको निकाल देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, अ परफेक्ट कोलॉइडल डिस्पर्शन। तो उसके लिए जो प्रोसेस करना है वो डायलिसिस है, और डायलिसिस प्रोसेस के लिए हम लोगों को कुछ मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। These membranes will allow only, they have pores inside which allow, they are so small that they allow only water and ions to pass through it, but they do not allow these colloidal particles। तो colloidal particle उसके अंदर ही रह जाते हैं मिक्सचर में, और ये सब चीज पास हो जाती है। So these are permeable membranes, okay, याद रखने का, these are called as permeable membrane which allow only ions and water to pass through it, like animal bladder हो गया, parchment paper, और सेलोफेन। ये सारे जो मेम्ब्रेन्स हम लोग यूज करेंगे, ये सिर्फ वाटर आयंस को थ्रू पास होने देंगे। अब डायलिसिस प्रोसेस कैरी आउट कैसे करना है ये देखते हैं।
तो सपोज मैंने एक कंटेनर लिया है, दिस इज द बॉटम ओपनिंग ऑफ द कंटेनर, यहाँ पर भी एक ओपनिंग है, ठीक है। एंड सपोज मुझे सॉल को प्यूरिफाई करना है, और सॉल में जो डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम वो वाटर है, ठीक है। तो मैंने देखो अभी क्या किया, एक दूसरा कंटेनर लिया है, बराबर देखना। नाउ ये जो कंटेनर मैंने अंदर रखा है बड़े कंटेनर में, इसकी जो वॉल है, दिस वॉल इज बेसिकली डायलिसिंग मेम्ब्रेन। और डायलिसिंग मेम्ब्रेन आपके परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो किसको अलाउ करते हैं, आयंस और वाटर को पास होने देते हैं, कोलॉइड्स को नहीं। अच्छा ठीक है, बाहर के बीकर, बाहर के कंटेनर में आई एम टेकिंग वाटर, सपोज ये अंदर जो मैं जो सॉल्ट को मुझे प्यूरिफाई करना है वो मैंने वाटर में बनाया। अच्छा यहाँ से देखो H2O कंटिन्यूसली आएगा और यहाँ से H2O कंटिन्यूसली बाहर जाएगा, तो देयर शुड बी अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर हियर। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है मेरा कोलॉइडल डिस्पर्शन, तो कोलॉइडल डिस्पर्शन मैंने ऐड कर दिया। चलो कोलॉइडल डिस्पर्शन इसमें चला गया है, इस कंटेनर में। अच्छा इसकी वॉल किससे बनी है, डायलिसिंग मेम्ब्रेन से, जो सिर्फ किसको अलाउ करेगा, विच अलाउ आयंस एंड वाटर टू पास थ्रू इट। ओके, नाउ दिस विल हैव, चलो अब यहां पर ये क्या है अंदर, दीज आर नथिंग बट योर कोलॉइड्स, ठीक है, कोलॉइड्स। अच्छा ये ब्लू में ये जो ये हो गए आपके नेगेटिव आयंस, दीज आर नेगेटिव आयंस, ठीक है। ब्लू में सपोज मैंने लिख दिया है दीज आर पॉजिटिव आयंस, these are impurities. So what will happen when there is a continuous flow of water, जब यहाँ से वाटर फ्लो होता रहेगा, कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, तो ये वाटर इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगा और इस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर बाहर आएगा, H2O going inside this bottle and H2O coming outside this container। तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आएगा, जब ये मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आएगा तो अपने साथ में इट विल कैरी दीज आयंस अलोंग विथ इट, with the pressure of water it will carry these ions outside this membrane, बाहर आ जाएंगे ये ions पूरे membrane की, क्यों, because pressure of water इस तरफ जा रहा है, तो water अपने साथ ions को ड्रैग करता हुआ जाएगा, और ions इस membrane के थ्रू, जो ये बॉटल का membrane है इनर, इसके थ्रू पास हो सकते हैं, because these are dialysing membrane, animal bladder, parchment paper, cellophane, इसके थ्रू वो ions पास होके बाहर निकल जाएंगे, और ये सारे ions finally these all these ions they flow outside this and they are removed। और अब इस इनसाइड द कंटेनर वी हैव ओनली वाटर एंड प्लस ओनली कोलॉइड्स। अच्छा अगर इसको स्पीड अप करना है तो क्या करो, आप इलेक्ट्रोडायलिसिस करो। ओके, दिस वाज द नॉर्मल, if you do if you do इलेक्ट्रोडायलिसिस, सो इलेक्ट्रोडायलिसिस में जो डायलिसिस हम लोग यूज करते हैं वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज करना है। मतलब आपको क्या करना है इसमें, सपोज यहाँ पर आपने एक मेटल प्लेट लगा दी जिसको आपने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये एनोड बन जाएगा। यहाँ एक मेटल प्लेट लगा दी जिसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये कैथोड बन जाएगा। तो अब क्या होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज आयंस है ये फास्ट एट अ वेरी फास्टर रेट दे विल मूव टूवर्ड्स दिस नेगेटिव प्लेट, एंड जितने भी नेगेटिव आयंस है दे विल स्टार्ट टू मूविंग टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पर क्या होगा, फिल्टरेशन सेपरेशन ऑफ आयंस, आयंस मूविंग आउट ऑफ द कोलॉइडल डिस्पर्शन विल बी एट अ वेरी फास्टर रेट। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज करना है जिसमें आयंस ऑपोजिटली मूव हो जाए और डायलिसिंग मेम्ब्रेन से बाहर आ जाए और अंदर का जो कोलॉइड है वो पूरा प्यूरिफाई हो जाए, सिर्फ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम बचे। So this is all about purification of colloids, guys. I hope you understood this.